کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی اور دیگر قائدین نے سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی نماز جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری زرین کلہ منگل 3 فروری کو 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ 4 فروری کو بعد نماز ظہر جامع مسجد حکیم میر وزیر علی فتح دروازہ میں ادا کی گئی اور تدفین احاطہ مسجد حضرت سید محی الدین پاشا زرین کلہ نور خاں بازار میں عمل میں آئی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی اور دیگر اراکین نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ احمد پاشا قادری کے انتقال سے سیاسی کوشوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سمیت کئی قائدین نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کو پرسہ دیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے کاتھی ریڈی پلی گاؤں میں جائیداد کے تنازع کے چلتے ایک بہن نے چیورلا کورٹ میں تربیت حاصل کر رہی اپنی وکیل بہن کا مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک 34 سالہ خاتون وکیل سوپنا چیورلا کورٹ میں تربیت حاصل کر رہی تھی کا مبینہ طور پر اس کے ہی بھائی نے قتل کر دیا۔ یہ قتل کھیتوں میں ہونے والی پنچایت کے دوران ہوا، جس کے بعد مشتعل وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ معین آباد پولیس اسٹیشن پر احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ حیدرآباد بیجاپور ہائی وے کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ رنگا ریڈی ضلع کے معین آباد منڈل کے کاتھی ریڈی پلی گاؤں میں وکیل سوپنا کے قتل نے مقامی طور پر ہلچل مچا دی ہے۔ جائیداد کے تنازع پر اس کے اپنے بھائی نے اسے کلہاڑی سے وار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس گھنونے فعل کے خلاف چیورلا کی عدالت کے باہر وکلاء نے زبردست احتجاج درج کروایا اور ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دینے اور وکلاء کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ ریاست مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع میں ادوشی ٹنل کے قریب ٹینکر الٹ جانے سے ممبئی پونے ایکسپریس وے پر گاڑیوں کی آمد و رفت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ رائے گڑھ ضلع میں ادوشی ٹنل کے قریب مبینہ طور پر ایک گیس ٹینکر الٹ جانے کے بعد ممبئی پونے ایکسپریس وے پر 12 گھنٹوں سے زائد تک ٹریفک جام رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ پروپیلین گیس ٹینکر تیز رفتاری سے جا رہا تھا کہ سرنگ کے قریب ڈھلوان پر بے قابو ہو گیا اور سڑک پر الٹ گیا۔ ٹریفک تقریباً 12 گھنٹوں سے زائد وقت تک جام رہی۔ دونوں سمتوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر رکی ہوئی تھی، جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ٹریفک اہلکاروں نے الٹ جانے والے ٹینکر کو ہٹانے کے بعد ٹریفک بحال کیا۔ اداکار پون کلیان کی سیاسی جماعت جنا سینا نے تلنگانہ بلدی انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت کرنے اور ریاست بھر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے اداکار و نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش پون کلیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران تلنگانہ بی جے پی صدر رام چندر راؤ نے بلدی انتخابات میں پون کلیان کی حمایت طلب کی، جس کا پون کلیان نے مثبت جواب دیا۔ انہوں نے جنا سینا کی جانب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریاست بھر میں بی جے پی کے لیے انتخابی مہم چلائیں گے۔ پون کلیان اس مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو یعنی 7 اور 8 فروری کو بی جے پی کی حمایت میں انتخابی مہم چلانے والے ہیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے ایک بڑے گھوٹالے کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں 6,000 کروڑ روپے کے ٹھیکے KLSR انفراٹیک کو دیے گئے ہیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق وزیر کے ٹی آر نے تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایک بڑے گھوٹالے کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں تقریباً 6,000 کروڑ روپے کے ٹھیکے KLSR انفراٹیک کو دیے گئے ہیں۔ یہ کمپنی مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے منسلک ہے اور فی الحال دیوالیہ پن کا شکار ہے۔ انہوں نے معاہدوں کو فوری طور پر منسوخ کرنے، کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے اور مرکزی ایجنسیوں سے گہرائی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کانگریس حکومت میں بے ضابطگیوں کا پردہ فاش کر رہی ہے۔ بے ضابطگیوں میں موسی ندی پروجیکٹ، لاگا چلا اراضی
अमृत स्कीम के टेंडर, सिंगारेनी कोयला टेंडर्स और HILTP अराजी के सौदे वगैरह शामिल है और इस तरह के इंकशाफात किए जाने के नतीजे में ही मुबैना फोन टैपिंग मामले में BRS लीडर्स को हुकूमत की जानिब से निशाना बनाते हुए समन भेजे जा रहे हैं। ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఇక రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి కాగానే వీళ్ళకి రెక్కలు వచ్చినాయి. బినామీ అని చెప్పడానికి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే రేవంత్ ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఇక వాళ్ళ ప్రాజెక్టులు వాళ్ళ కంపెనీ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఏమంటారు వీళ్ళు, మాకు ఈ మధ్య కాలంలోనే పెద్ద ఎత్తున 6,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు వచ్చినాయి, అమృత్ స్కీమ్ వచ్చింది, జల్ జీవన్ మిషన్ వచ్చింది, యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మొత్తం కలిపి 6,000 కోట్ల రూపాయల వర్క్స్ మాకు వచ్చినాయని చెప్పి, యంగ్ ఇండియా అంటే మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న స్కీము, జల్ జీవన్ ముఖ్యమంత్రి గారి కింద అమృత్ స్కీమ్ ఉంది, అన్నిట్లో కూడా 6,000 కోట్ల వర్కులు నేను చదువుతాను, ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయో కూడా చెప్తాను మీకు. ప్రశ్న ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు, మెదక్లో R&Bలో వర్క్ ఇదంతా, ఇది ఎంతమ్మా క్వాంటమ్, ఇది దాదాపు 116 కోట్లు, ఇక్కడ ఒకటి. తర్వాత మీరు గమనిస్తే ఇది మెదక్లోనే ఇంకొకటి, ఇంప్రూవ్మెంట్స్ టు షాద్ నగర్ పరిగి రోడ్, ఇదొక 135 కోట్లు. తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్, ఇది ఎక్కడ, మోతే సూర్యాపేట, ఇది 1910 కోట్లు, KLSR ఇన్ఫ్రాటెక్. साबिक वजीर व MLA जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली स्पीकर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा व सूर्यापेट के रुकने असम्बली जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जगतियाल के MLA संजय कुमार के खिलाफ दायर अर्जी को मुस्तरद करने और उनके हक में फैसला सुनाने पर कहा कि यह अफसोस की बात है कि स्पीकर ने MLA के खुलेआम पार्टी तब्दील करने और कांग्रेस के इजलासों में हिस्सा लेने पर तवज्जो नहीं दी और न ही कोई कार्रवाई की गई। अवाम स्पीकर के एकतरफा फैसले को देख रहे हैं। अवाम कांग्रेस को उसकी हरकतों पर जरूर सबक सिखाएगी। हैदराबाद जिला कलेक्टर हरिचंद्रा ने हिमायतनगर के SCCD गर्ल्स हॉस्टल का दौरा करते हुए तालिबात से बातचीत की और सहूलियात का मुआयना किया। तालिबात को सहूलियात की फराहमी के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर हिमायतनगर में SCCD गर्ल्स हॉस्टल मुंतकिल किया गया है। हैदराबाद जिला कलेक्टर हरिचंद्रा ने हिमायतनगर के SCCD हॉस्टल का दौरा किया। बताया जाता है कि हॉस्टल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरा माहौल और मियारी खाने फराहम किए जा रहे हैं। हिफाजती इक़दामात को भी बेहतर बनाया गया है। इस दौरान कलेक्टर ने तलबा के साथ बातचीत की और हॉस्टल की सहूलियात का जायज़ा भी लिया। उनका कहना था कि हर तालिब इल्म को तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए एक महफूज, माविन और परवरिश बख्श माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने की ज़रूरत होती है और उसी पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। साबिक वजीर हरीश राव ने पटन चेरू हल्के के मदारम गांव का दौरा करते हुए गांव की खवातीन से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। साबिक वजीर व असम्बली के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने पटन चेरू हल्के के गड्डा बोतारा म्यूनसिपालिटी के मदारम गांव का दौरा किया। अपने दौरे के मौके पर उन्होंने गांव की खवातीन से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बताया जाता है कि गांव की खवातीन ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की और अफसोस का इजहार करते हुए हरीश राव को बताया कि KCR के दौर में नाफिज की गई फलाही स्कीमात अब मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात से पहले कई वादे किए थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उन वादों को फरामोश कर दिया गया है। बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं की जा रही है। रियासती वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने एडलापुरम बल्दी इंतखाबात की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 10वें वार्ड में रोड शो किया। अवाम से तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। एडलापुरम म्यूनसिपालिटी के बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र रियासती वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने 10वें वार्ड में मुनक्किद रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल पहले अवाम ने उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करते हुए खिदमत का मौका फराहम किया था और अब वो एडलापुरम म्यूनसिपालिटी की हमगीर तरक्की को यकीनी बनाना चाहते हैं और
और हर ज़रूरी काम करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो एडलापुरा म्यूनसिपैलिटी की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब करें। रियासती वजीर ने कहा कि पिछले 2 सालों में गुंडीमाला गांव में 14 करोड़ रुपये के तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और आने वाले दिनों में मजीद तरक्याती इक़दाम किए जाएंगे, सड़कों की तामीर की जाएगी। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की कि वो कांग्रेस के निशान को वोट देकर कांग्रेसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और एडलापुरा म्यूनसिपैलिटी में कांग्रेस का झंडा लहराएं। शहर हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जरा ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जेएचएमसी के कुकटपल्ली के दफ्तर में अचानक छापा मारा। इस दौरान एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चिन्ना रेड्डी को मुबैना तौर पर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कांग्रेस के मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट ने लोकसभा के बाहर शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया। लोकसभा की कार्रवाइयों में खलल डालने पर कांग्रेस के कई अराकीन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल अराकीन पार्लियामेंट ने चारशंबे को लोकसभा के बाहर एहतजाज किया। एलओपी राहुल गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी वो एमपी प्रियंका गांधी समेत कई लीडर्स ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इसी दौरान एक वीडियो में राहुल गांधी ने वजीर ममलिकत रणवीर सिंह बिट्टो को अपने गद्दार दोस्त कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएंगे। इसके जवाब में रणवीर सिंह ने भी राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने जगतियाल के रुकन असेंबली संजय कुमार के खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। जगतियाल के एमएलए संजय कुमार को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने उनके खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। दरख्वास्त बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मुनहरिफ होने के इल्जाम में संजय कुमार की नाअहली का मुतालबा किया गया था। स्पीकर ने फैसला दिया है कि पार्टी तब्दीली को साबित करने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद नहीं है और जगदीश रेड्डी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के जिले वेस्ट कामेंग में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हवा में खौफ व हरास फैल गया। ज़रा ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के जिले वेस्ट कामेंग में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। इदारे ने सोशल मीडिया पर इतला दी कि 4 फरवरी 2026 को सुबह 8:57 और 36 सेकंड पर ज़लज़ला आया। ज़लज़ले का मरकज़ वेस्ट कामेंग अरुणाचल प्रदेश था, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी, जबकि अर्ज़ बलद 27.4 और शुमाली और तूल बलद 92.31 रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने के बाद अवाम में खौफ व हरास फैल गया। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने साबिक़ आर्मी चीफ एम नरवाने की लिखी हुई किताब को मंजर आम पर लाते हुए स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से किए गए दावों को गलत साबित किया है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान एलओपी राहुल गांधी ने साबिक़ आर्मी चीफ एम नरवाने की लिखी हुई किताब से कुछ इक़्तिबास किया था, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एतराज़ करते हुए कहा कि जिस किताब से राहुल गांधी ने इक़्तिबास किया है वो किताब मौजूद ही नहीं है। लेकिन चारशंबे को एलओपी राहुल गांधी ने साबिक़ आर्मी चीफ एम नरवाने की लिखी हुई किताब पेश की और कहा कि यही वो किताब है जिसमें उन्होंने लद्दाख का अहवाल लिखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और आर्मी चीफ से कहा कि वो जो करना चाहते हैं करें, और आर्मी चीफ ने इस किताब में वाज़ेह तौर पर सब कुछ लिख दिया है। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट।
Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है. इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है जो लद्दाख का जो अकाउंट था. और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है. यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो. राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं. जगतियाल के रुकने असेंबली संजय कुमार ने कहा कि वो जगतियाल की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. जगतियाल के एमएलए संजय कुमार ने अहम तबसरा किया है कि वो अब भी भारत राष्ट्र समिति के ही रुकने असेंबली हैं और पार्टी फंड के लिए हर माह उनकी तनख्वाह से 5,000 रुपये अदा किए जाते हैं. उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जगतियाल की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. एमएलए संजय कुमार ने अवाम से अपील की है कि वो ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करें जो तरक्की की हिमायत करते हैं, ताकि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को कोई भी मुश्किल पेश न आए. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,